पेश है गुड मॉर्निंग J&K। عالم چھ نوی آش لبا گاشن سۭتۍ عالم چھ نوی آش لبا گاشن سۭتۍ گٹہٕ زُل چھ ژلان نوٗر پھلان گاشن سۭتۍ شبنم چھ پیاران آفتابس کر دیم رخصت شکرانہ جاناوار پرا گاشن سۭتۍ۔ السلام علیکم، صبح بخیر، آداب۔ تو کہیے گا جناب کیسے ہیں آپ؟ گڈ مارننگ J&K کا ایک اور تازہ شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ایک نئے جوش کے ساتھ، ایک نئی صبح کے ساتھ، ایک نئی ارادے کے ساتھ ہم میزبان آج بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین جانتے ہیں کہ صبح صبح جب آپ جاگتے ہیں، نون چائے کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، اس وقت آپ کو یہ خیال ہوتا ہے کہ جب 8 بجیں گے تو آپ کا من پسند پروگرام، پسندیدہ پروگرام بریک فاسٹ مارننگ شو آنے والا ہے، اور ٹی وی سیٹس آن کیے ہوتے ہیں، یوٹیوب لائیو چیٹ آن کیا ہوتا ہے، جوش کے ساتھ ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی جوش اور اسی ولولے کے ساتھ ہم بھی آپ کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ ہمیشہ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی دیکھنے والے خوش و خرم ہوں گے، صحت و سلامت ہوں گے، اور اپنے زندگی کے نیک معاملات میں روا دوا ہوں گے۔ آغاز میں نے ایک شعر سے کیا، اور جس طرح سے شبنم انتظار کرتی ہے کہ کب سورج کی جو وہ تپش ہے آ جائے گی اور وہ مجھے رخصت کرے گی، اس کے بعد سورج کا آغاز ہوتا ہے، دن کا آغاز ہوتا ہے، اسی طرح سے ہم بھی رات میں انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین سے ہماری کب ملاقات ہوگی۔ ناظر محترم، اسی جوش کے ساتھ، اسی ولولے کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جوش سے مجھے خیال آیا کہ انسان کو زندگی میں جوش ہمیشہ رکھنا چاہیے، اور کبھی یہ جوش آگے جب بڑھ جاتا ہے تو اس پہ ہوش سنبھالنا لازمی ہو جاتا ہے، اور صرف جوش کام میں نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ جب آپ یہ انرجی دکھاتے ہیں یا جوش دکھاتے ہیں کئی چیزوں میں تو ان میں مفید چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن اگر یہ جوش غصے میں تبدیل ہو جائے تو تب ہوش کو سنبھالنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یہ جوش ہماری عام زندگی میں نظر آتا ہے، یہ صرف اور صرف ہمارے کام میں نہیں، بلکہ اگر آپ مثال کے طور پہ ڈرائیونگ کرتے ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ سپورٹس ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہیں یا کسی اور کام میں مصروف ہے، آپ باس ہے، آپ کام سنبھال رہے ہیں، پھر آپ کو کسی وقت یہ غصہ آ جائے اور اس وقت آپ کو ہوش سنبھالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ہمارے بزرگ اکثر کہ نیزے سے نکلا ہوا تیر اگر زخم دے جائے تو وہ زخم بھر جاتا ہے، لیکن جوش میں اگر آپ نے زبان سے کوئی بات نکالی تو وہ زخم کبھی نہیں بھرتا۔ اسی خوبصورت بات کے ساتھ آج کے دن کا آغاز کرتے ہیں، اور میں اس میں اور انتظار نہیں کرواؤں گا آپ کو۔ آج کے شمارے میں آج بھی 2 میزبان اس پروگرام کو سنبھال رہے ہیں۔ آج میں رہوں گا آپ کے ساتھ اشفاق خابزی، اور آج میرے اس سفر میں میرا ساتھ دے رہے ہیں میرے استاد، میرے بڑے بھائی، خاص دوست ڈاکٹر میر جاوید صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام، آپ کیسے ہیں اشفاق؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ نہایت ہی جوش اور جذبے کے ساتھ آپ نے پروگرام کی شروعات کی، اور جی بہت شکریہ، بہت ہی نصیحت آمیز جو سبق آموز باتیں ہیں وہ ہمارے ناظرین تک پہنچائیں۔ جی، اور جوش کی ہم بات کریں تو ابھی موسم بھی بڑے جوش میں ہے۔ جی جی، رود اللہ اگزائٹیڈ پہ تو تھوڑا سا موسم میں بدلاؤ آئے گا، حالانکہ وقتی طور پہ اس وقت تھوڑی سی جو تمازت ہے اس میں کمی تو آئی، لیکن آج رات کی اگر ہم بات کریں تو آزوز بے دم اچھی طرح سے سو نہیں پائے، اور وہ عجیب سی وہ گھٹن کی جو کیفیت ہے، یا جب ابھی صبح اٹھے 6 بجے 7 بجے ہی موسم کے ایسے تیور نظر آ رہے تھے کہ ہم
कि हम इस चीज़ को हम देख ही नहीं पा रहे थे कि ये कौन सा मौसम है। अभी हालांकि अगस्त है और गर्मी तो वैसे भी होती है और ये गर्मियों के ही दिन है, आज नहीं गर्मी होगी तो फिर कब होगी जी। लेकिन अभी अब की बार जो ये गर्मियों का जो ये सीज़न है ये कुछ ज़्यादा देर रहा और ये जो 34, 35, 36 का जो टेम्परेचर है ये काफ़ी दिन रहा और बारिशें जो हैं वो जो जैसा हमारी तवक्को थी उतनी बारिशें नहीं हुई। खैर अभी चल रहा है ये सारा मामला अल्लाह ताला के हाथ में है। हमारे हाथ में जो है वो दुआएं हैं, हम दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला से आजिज़ी और इनकिसारी के साथ कि ये जो मौसम के मामलात हैं हमारे लिए नेक रहेंगे। आज शनिचरवार है, 3 अगस्त है 2024 मुताबिक 27 मुहर्रम अल हराम 1446 हिजरी। और ये जो अशफाक देख रहे थे कि तकरीबन अब 150 दिन ही बाकी बचे हैं इस साल में। जी। और हर गुजरा हुआ दिन जो है वो एक अपनी तारीख रकम कर जाता है और इंसान जब पीछे मुड़ के देखता है तो यही एहसास होता है कि ये रात दोहराव मैंने कौन सा अच्छा ऐसा काम किया जिससे मुझे फायदा हुआ या मेरी वजह से दूसरों को फायदा हुआ। और प्यार, मोहब्बत, खुलूस, बेलौस मोहब्बत बांटते हुए आज अजीब एक मतलब अजीब भी क्या कहें, असल में आजकल फुर्सत नहीं है। मैं अभी जब स्टूडियो आ रहा था घर से तो रास्ते में मैंने एक माँ को देखा जो अपने बच्चे को स्कूल की बस तक साथ निकली थी। सस बराबर तमिस मे बसान यह मीटर हथा ना स्टॉप सस तमिस वुचान पोत अच्छ वन पे पोत छायन हकीकत छायन तो ग्रायन वुचान और उनको देख रही थी, तक रही थी। कॉल न सो गाड़ी दिखो तब तक वो वहाँ से निकली नहीं है। मैं 1 मिनट के लिए मैंने गाड़ी रोकी, मैं देख रहा था कि ये प्यार, मोहब्बत, खुलूस, बेलौस मोहब्बत जो वालिदैन करते हैं उसका कोई सानी नहीं है। और ऐसा नहीं है कि वालिदैन इसलिए करते हैं कि उन्हें ये उम्मीद होती है कि बाद में ये जब हमारा बुढ़ापा होगा ये हमारे लिए कुछ करेंगे। लेकिन इंसानियत का तकाजा यही है कि अगर हमारे साथ कोई एहसान करे हम उसके साथ एहसान करें। कुरान में वाज़ेह तौर पे लिखा है कि वालिदैन के लिए ये दुआ कि इन पे ऐसे ही रहम कर या अल्लाह जिस तरह से मेरे बचपन में इन्होंने मुझ पर रहम किया था। तो ये सब चीज़ें जो हैं वालिदैन जब बुजुर्गी में आते हैं उसके बाद थोड़ा सा जो वक्त है आप निकालें, अदीमुल फुर्सत होते हैं, अभी मादियत का दौर है, लेकिन थोड़ा सा वक्त निकालें, आप वालिदैन के साथ बात करें। अगर आप काम पे हैं, अगर आप दफ्तर में हैं, कहीं पे भी है, एक फ़ोन कॉल करके उनकी तबीयत आप पूछ भी सकते हैं। उससे क्या होगा कि उनको अच्छा लगेगा और जो चीज़ जो असर दवाइयाँ नहीं कर पाती हैं वो मुस्कुराई हुई आवाज़ में, मुस्कुराते हुए लबों से निकली हुई वो आवाज़ जो है वो असर करती है। और माँ बाप का हक भी है, रिश्तों का हक भी है, यारों दोस्तों का हक भी है और हमारा आपका हक भी है। ये 8 बजे से लेकर 9 बजे तक हमारा आपके साथ ये जो मिलना जुलना होता है इसका मकसद यही होता है कि ये 1 घंटा हम कम से कम देखते रहें, क्योंकि हम एक साथ गुजारे हुए जो लम्हे हैं हम यहाँ पे अपनी इस्तात के मुताबिक अपनी फ़हम फरासत के हिसाब से कुछ गुजारिशात रखते हैं। हमेशा यही कोशिश करते हैं कि उन पे हम पहले खुद अमल पैरा हों। आपसे भी गुजारिश करते हैं कि उनमें जो जो अच्छी बातें हैं उन पे आप भी अमल पैरा हो करके अपने लिए, अपने जो आपके साथ मुंसलक लोग हैं, समाज के लिए, मुल्क के लिए आप अच्छे शहरी बने, अच्छे इंसान बने, क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। बेशक बेशक बेशक। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अल्लाह ताला हमारे सभी नाजरीन को और उसके साथ साथ हमारे माँ बाप को सेहत सलामत रखें। और नाज़रीन मोहतरम, आप जानते हैं आगाज़ में आप तक पहुँचाते हैं मौसम और शहरों के हवाले से हाल चाल, मौसम के बारे में डॉक्टर साहब ने हल्की बात की और आज बताता हूँ कि मौसम कैसा रहेगा। श्रीनगर में आज मतलब अबरालूद रहने के इम्कान है और कुछ इलाकों में भी बारिशें देखी जा सकती है। श्रीनगर का दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 33 डिग्री सेल्सियस कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कान है। जम्मू का दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 35 डिग्री सेल्सियस कम से कम 24 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कान है। इसके साथ साथ जम्मू में आज हल्की फुल्की बारिशें भी होने के इम्कान है। ट्रैफिक के हवाले से आपको बताता चलूं कि ट्रैफिक कंट्रोल रूम से मिली इत्तला के मुताबिक श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाजत मिली है। बड़ी गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर की ओर रवाना किया जाएगा। श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर छोटी और बड़ी गाड़ियों को एक तरफा यानी कारगिल से श्रीनगर की ओर रवाना किया जाएगा। मुगल रोड पर छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाजत मिली है। मजीद तफसीलात के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता जरूर कायम करें। ट्रैफिक कंट्रोल रूम के नंबरात आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दस्तियाब हैं। खैर, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के आगाज में हमारे नाजरीन के लिए कुछ न कुछ खास होता है, क्या कुछ खास है आज भी, किस तरह का एहतमाम है?
कुछ चीजें तो आम हैं, जैसे गुड मॉर्निंग जेन के है, ये नून चाय का कप है, हाँ बिल्कुल, और और हम हैं हमारे जो मुख्तलिफ साथी हैं इस प्रोग्राम को पेश करते हैं। हर दिन दो मेजबान होते हैं जिनको ये शर्फ मेजबानी हासिल होता है। हम बड़ी आरजू करते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा मौका मिले आपसे बात करने का, आपके रूबरू होने का, मुलाकात करने का। और इससे पहले कि हम नगमे की तरफ जाएं, मुझे कल एक शख्स मिले मुझे, तो शायद पहचाना उन्होंने गुड मॉर्निंग जेन की वजह से, तो लेकिन वो पूरी तरह से वो रिकैप्चुएट नहीं कर पाए कि मैंने उनको कहाँ देखा है। फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको जानता हूँ। मैंने कहा मैं आपके घर आया हूँ। तो कहा जब आप मेरे घर आए हैं तो उसके बाद मुझे याद नहीं है। फिर मैंने कहा गुड मॉर्निंग जेन के देखते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल आप मेरे घर आए हैं, बिल्कुल। तो ये असल में वही एक प्यार का मामला है जो हम सुबह सुबह बिल्कुल खुलूस से नीयत से, खुलूस से दिल से आपके साथ बांटते रहते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक। आइए आज दीपाली वातल जो बड़ी खूबसूरत आवाज़ की मालिका है, इनकी आवाज़ में गाया हुआ ये खूबसूरत नगमा आपकी नज़र करते हैं। उसके बाद गुड मॉर्निंग जेन के प्रोग्राम का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ेगा। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग जेन के, और ये दीपाली वातल का गाया हुआ नगमा सुनिए।
जी नाज़रीन मोहतरम इस्तकबाल आप सभी देखने वालों का फिर से नून चाय के साथ साथ गुड मॉर्निंग JNK के शुमारे का आप मज़ा ले रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कब तो आपके हाथ में है, नून चाय का मज़ा ले रहे हैं, हमारे हाथ में भी है और पास में मोबाइल फ़ोन भी है। अगर टीवी पर नहीं देख रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन में यूट्यूब अवेलेबल है, यूट्यूब पे जाइए, वहाँ लाइव स्ट्रीमिंग DD कसर के नाम से सर्च करें, हमारी चैनल मिल जाएगी और गुड मॉर्निंग JNK का मज़ा वहाँ से भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ यूट्यूब पर दीगर नशरियात भी वक्तन फ़वक्तन अपलोड होते रहते हैं। हमारे चैनल को भी वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यार और मोहब्बत भरे कमेंट्स हमें नवाजिएगा। आज भी लाइव चैट में कोशिश कीजिएगा कि कुछ खास तजुर्बात हमारे साथ शेयर करें। आज हम कोशिश इंशाल्लाह करेंगे कि आपके जो आ रहा तजवीज़ है, आपकी जो बातें हैं, सवालात जो आपके पास हैं, वो हम ज़रूर शामिल प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे। नून चाय का मज़ा लीजिए, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। ये सिलसिला तो जारी है लेकिन यहाँ पर रुकना पड़ेगा एक वक्फे के लिए, वक्फे के बाद इस सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और गुड मॉर्निंग JNK में आज अशफाक है मेरे साथ जी, और हम दोनों इस प्रोग्राम का जो कार्रवाई है कि ये जो सिलसिला है 9 बजे तक हम आपके साथ रहेंगे, आपके साथ बातें करेंगे। जैसा अभी अशफाक कह रहे थे कि अगर आपके दिल में कोई बात है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, चाहे प्रोग्राम की बेहतरी के हवाले से हों या आपके कुछ अलग एहसासात, तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि आज की इस नशरियात में उन कमेंट्स को हम शामिल प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह। और आज जो अभी हम थोड़ा सा अनयूजुअली हम आज प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे जी। आज अशफाक जो काफ़ी देर से आप इनको देख रहे हैं गुड मॉर्निंग JNK की स्क्रीन पे जी, तो आज थोड़ा सा पहले क्योंकि जब भी आप हमारे बारे में जानते हैं तो एक टिकर चलता है, हमारा नाम चढ़ता है कि अशफाक हाफिजी हैं, जावेद है, अजहर है या नियाज भाई है, कोई जितने भी हैं, तो नाम के अलावा आप ज़्यादा जो जानकारी है एंकर्स की वो आपको ज़्यादा इल्मियत नहीं होती है। थोड़ा सा आपको आज बताएंगे जो हमारे आज के मेरे साथी हैं अशफाक हाफिजी, इनके शुमाली कश्मीर से इनका ताल्लुक है, दिलना में रहते हैं, इतना मुझे पता है। और ये जो नाम है अशफाक हाफिजी, इसके बारे में इनके तालीम के बारे में थोड़ा सा हम पहले मुख्तसरन जानना चाहेंगे। इसका के पीछे एक मकसद है, हम क्यों पूछ रहे हैं, इसके पीछे एक मकसद है। थोड़ा सा अशफाक बता दीजिए कि गुड मॉर्निंग JNK का ये जो सफ़र है शुरुआत से लेके अभी तक, मतलब किस तरह से आप रागिब हुए इस चीज़ की तरफ और अल्टीमेटली जब यहाँ बैठे तो कैसा लगा? बहुत खूबसूरत डॉक्टर साहब, इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे, मैं अपने बारे में ज़रूर बताऊंगा इंशाल्लाह, और उसके साथ साथ आज डॉक्टर साहब के बारे में भी पूछेंगे। ये सवालात मैं चाहता था कि मैं इनसे करूं, पर इन्होंने उससे पहले ही हमसे ये सवालात किए और मैं क्या ही अपनी ज़िंदगी के बारे में बताऊँ। मैं नहीं मानता कि मैं किसी के लिए वैसे इतनी बड़ी इंस्पिरेशन हुई या मैंने ऐसा कोई मकाम हासिल किया है कि ज़िंदगी में वो सब चीज़ें मैं आपके सामने रखूं और वो एक खाका बन जाए, एक ट्रैक बन जाए, आप उसी ट्रैक पे चलें। पर थोड़ी सी कोशिश जो है ज़िंदगी में हमेशा रहती है और उस कोशिश से फिर मंजिलें आसान हो जाती है और कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। मैं डॉक्टर साहब, मैं दिलना से वाबस्ता नहीं रखता हूँ। शुमाली कश्मीर का जो पट्टन कस्बा है, अच्छा, पट्टन में आप पलहालन का आपने नाम सुना होगा, वहाँ से मेरा ताल्लुक है, वहीं पे मेरी पैदाइश हुई है, वहीं पे मेरी पढ़ाई हुई है। उसके बाद पढ़ाई का सफ़र फिर बारामूला, फिर बारामूला से श्रीनगर, श्रीनगर से फिर आउट ऑफ द स्टेट और फिर मैंने अपनी इंजीनियरिंग भी कंप्लीट की। उसके बाद जर्नलिज्म से थोड़ा ताल्लुक बढ़ा और जर्नलिज्म जैसे ही छू गया उसके बाद दूरदर्शन के जो दर्शन है वो हो गए। बचपन में जब मैं रेडियो सुनता था और तब पयाम सुबह आता था, हुमायूं कैसर साहब जैसे नाम या उनके साथ साथ रशीद निज़ामी जैसा नाम, आबिद गौहर साहब, वो नाम जब हम सुनते थे, या अशफाक लोन साहब है, बहुत सारे नाम है, अभी मेरी जुबान पे वो नाम आ रहे जो बचपन में ज़्यादा थोड़ा सुनते थे। सुबह जब रेडियो ऑन होता था तो बाबा कहा करते थे कि इनकी बातें सुनो देखो, क्योंकि बाबा मेरे शायर हैं और ताल्लुक अदब से हैं
اور مجھے کوشش کرتے تھے کہ مجھے سکھائیں بات کرنے کا طریقہ، ادب کا طریقہ، اور تربیت والے معاملات میں جو وہ ہمیشہ اضافہ کرتے رہتے تھے. اس کے ساتھ ساتھ ریڈیو کے ساتھ بھی وہ ہمیں رجحان رکھتے تھے. صبح ریڈیو کہتے تھے کہ آپ سنیں، پیام صبح سنیں، اس کے ساتھ جو باقی دیگر نشریات آتی ہیں ان میں انفارمیشن ہوتی ہے، خوبصورت باتیں ہوتی ہیں، نصیحتیں ہوتی ہیں، ان پہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں. اور اسی کوشش میں مجھے وہ باتیں کرنے سے، وہ الفاظوں کا وہ جو مجموعہ ہوتا ہے ان کا، اور وہ بولنے کا انداز، وہ وائس ٹون مجھے بڑا چھو جاتا تھا، اور میں کوشش کرتا تھا کہ میں ان کے طریقے سے بات کروں. تو اس کے بعد اسکول میں آپ کو پتہ ہی ہے، کیونکہ انسان اسمبلی میں کھڑا ہوتا ہے، آپ جب کلاس کے ریپرزنٹیٹو ہوتے ہیں تو آپ کو بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. میں ماشاءاللہ کلاس کا ریپرزنٹیٹو بھی رہا ہوں لگاتار، اور اس کے ساتھ پھر ان چیزوں کی اور راغب ہوا، اور اس کے بعد یہ سفر جو ہے براڈ کاسٹنگ میں تبدیل ہو گیا. ایک چھوٹا سا سفر ہے، اور کافی کوشش کرتا ہوں کہ اس سفر میں بہت آگے بڑھوں، محنت کروں، اور انشاءاللہ ایک اس طرح سے نام بناؤں کہ میرے دیکھنے والے جو ہیں، یا میرے بابا جو ہے، یا میری ماں ہے، جنہوں نے کافی محنت ہمارے پیچھے کی ہے، ہماری فیملی کے پیچھے انہوں نے کندھا جو ہمیشہ سے رکھا ہے، وہ پھر فخر سے بول پڑے کہ یہ ہماری شان ہے، ہمارا بیٹا ہے. بس یہی کوشش ہے. ہمیں بھی بڑا اچھا لگتا ہے جو بھی ایک تھرڈ جنریشن ہم کہیں گے اس کو، کیونکہ اس پروگرام کے ساتھ بڑے بڑے نام وابستہ رہے ہیں. امین بٹ صاحب، شاہد شبیر صاحب، زاہد مختار صاحب، مسعود منتظر صاحب، جنہوں نے کافی دیر اس پروگرام کو کیا. اور بہت جو ایک اس کے بعد ایک جو نئی کھیپ آئی، میں بھی پچھلے تقریباً 12 سال سے کر رہا ہوں گڈ مارننگ جین کے پروگرام. تو اس کے بعد جب ہم یہ سلسلہ جب آگے بڑھا، تو یہ جو آپ ابھی بات کر رہے تھے، تو کہیں نہ کہیں وہ ایک چنگاری جو سپارک جو ہے، وہ سپارک ہونی چاہیے ہمیشہ. صحیح بات. اور جب وہ سپارک ہو تبھی آپ اس کو پھر ایک انقلاب میں تبدیل کر سکتے ہیں. ایک ایسی نہیں تو جہاں جس جگہ سے آپ کا تعلق ہے پلہالن، وہ سری نگر سے دور ہے، کم سے کم 20-30 کلومیٹر دور ہے سری نگر سے. پھر وہاں سے پھر آپ یہ انسپائر کر کے کہ میں ریڈیو میں یا دوردرشن میں پروگرام کرتا ہوں، اس کے لیے مسافت بھی طے کرنا ہے، پھر واپس جانا ہے، پھر اچھا پہنچ ٹونگتے باقی چیز تھے. مگر اس سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہے جذبہ، جس کی آپ بات کر رہے تھے کہ میں کوئی چیز کرنا چاہتا ہوں تو اس کے پیچھے آپ ایسے اس دن سے لگ گئے اس کے پیچھے کہ آپ نے الٹیمیٹلی پھر وہ یہ چیئر جہاں جو آپ اسکرین کے اس طرف دیکھتے تھے ہمیشہ، اور آپ کو بڑا وہ من کرتا تھا کہ آپ اس طرف آ جائیں کبھی، تو وہ جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہوا الحمدللہ. اور گڈ مارننگ جینٹ کے ہم کافی عرصے سے دیکھتے تھے، بابا زیادہ دیکھتے ہیں اس پروگرام کو، اور بہت پیار سے ہمیشہ نوازتے ہیں. آپ آج بھی دیکھیے گا کہ وہ کمنٹس کرتے رہتے ہیں، اور ابھی بھی بہت سارے ناظرین ہمیں کمنٹس کر رہے ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ ضرور شامل پروگرام کریں گے. اور آج بھی لکھتے ہیں، تجویزیں دیتے ہیں پروگرام کے بارے میں. اور جب یہ اس کے متعلق میں نے سنا تھا، جب آڈیشن نکلا پروگرام کے اس پار، جب دیکھتا تھا آپ کو دیکھتا تھا، امین صاحب کو دیکھتا تھا، اظہر بھائی کو دیکھتا تھا، عمار صاحب کو دیکھتا تھا، یا ہمارے دیگر اینکر سے ناظمہ ہے، اقرا ہے، اس سے پہلے جو اینکرز ہمارے اور بھی رہے ہیں پروگرام کے ساتھ منسلک ہیں، ان کو دیکھتا تھا انسان تو دل خوش ہو جاتا تھا کہ صبح صبح کچھ اچھی انفارمیشن ہمارے سامنے آتی ہے، اور بڑے خوبصورت انداز سے پیش کی جاتی ہے، اور پیار و محبت کے ساتھ اس پروگرام کو آگے بڑھاتے رہتے ہیں. پھر جب آڈیشن ہوا، سوچا نہیں تھا کہ آڈیشن اس طرح سے کوالیفائی ہو جائے گا، اور الحمدللہ پھر ہاٹ سیٹ پر بیٹھنے کا موقع ملا، اور میزبانی کرنے کا بھی موقع ملا. یہ اللہ تعالیٰ کی ہی قدرت ہے، وہی جب نوازتا ہے تو وہی اللہ تعالیٰ آپ کو عزت سے نوازتا ہے، اور زندگی میں آپ پھر کامیابی حاصل کرتے ہیں. کریں گے. اور بہت ساری باتیں کرنی، اور مجھے آپ کی زندگی کے بارے میں انشاءاللہ جاننا ہے. مجھے ایک پرومو آیا جاتا ہے لوک رنگ پروگرام کے حوالے سے. یہ پہلے اس پرومو کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے کا سلسلہ وہ جاری رہے گا. آگے بڑھائیں گے اس کو، اور آپ کی کمنٹس بھی، آرا اور تجاویز بھی اس پروگرام میں شامل کریں گے. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ جے اینڈ کے. میں پھلا نے سیج پریسان جے کر میرے تو آوے. کتنا خوبصورت گیت ہے نا. بالکل، اور اسی لیے تو میں کہتی ہوں نا وندیا کہ مجھے پہاڑی سیکھنی ہی سیکھنی ہے. یہ پہاڑوں کی دھن ہے، یہ پہاڑوں کی آواز ہے جو آپ سے کہہ رہی ہے کہ اگر آپ میرے گھر آئے تو میں پھولوں سے سیج سجا دوں. کوئی بجلی ساون دی ہے کدو میں اڈیک رکھاں مایا تیرے آمن دی. میں پھلاں دی سیج بڑے سانجے گھر میرے تو آویں.
سونے نال نہ پیتل رل دے سونے نال نہ پیتل رل دے سرمے نال نہ کولے سرمے نال نہ کولے کاواں دی کی قدر محمد جتھے بل जी नाज़रीन मोहतरम इस्तकबाल आप सभी देखने वालों का। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K और आज की सफ़र में भी दो मेज़बान आपके साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद है और सिलसिले कलाम हम आपस में ही कर रहे हैं। डॉक्टर साहब नाज़रीन पूछ रहे हैं कि क्या बात है, मेहमान को आज देर क्यों हुई? आज हमने मेहमान नहीं बुलाया है और इसलिए आज जो बात होगी वो आपके और हमारे बीच में होगी और हम दोनों के बीच में होगी। आज हम चाहते हैं कि ये एक नए अंदाज में प्रोग्राम को हम आप तक पेश करें और आपकी जो आरा तजावीज़ हैं, आपको ये सिलसिला या ये हमारी कोशिश कैसी लगी हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। वो अशफाक के साथ मैं अभी बात कर रहा था तो अशफाक ने अपना जो सफ़र है घर से लेके यहाँ दूरदर्शन के स्टूडियोज तक का वो हमारे साथ अभी साझा किया। थोड़ा सा हल्की सी जानकारी जो पलहालन जो इलाका है, क्योंकि सभी लोग नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं है, पलहालन एक अच्छा बड़ा कस्बा है, लेकिन तब भी थोड़ा सा आप उसके हवाले से पलहालन के हवाले से थोड़ा सा दो चार बातें बता दीजिए जो कुछ खास है वहाँ। जैसे हम बारामूला मज अक्सर वन कि तसान बगैर खान बारामूला बड़ मशहूर या इथे पे वन शुपियन शिरमाल या पाम्प्र शिरमाल इथे पे कि खान चीज़ या कह अत इलाक मज ज्यादा पहन मुरवज तम मुतलिक वन थोड़ा सा या जो पलहालन इलाका है उसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। जरखेज इलाका है पलहालन माशाल्लाह और मुझे फ़ख्र है मैं उस इलाके से वाबस्ता हूँ। पलहालन बोड़ गाम युस जन वारियान हल्कन मज तथ में ABCDEFGH तो हूँ अंदाज लगे आबादी माशाल्लाह कच हेल्थ सेक्टर माशाल्लाह रूद। पलहालनस मुतलिक अक मिसाल यम आइडिया मिल कि अत वन पलहालन सत वन कि यमन फेर न बतस चालन और माशाल्लाह तत बत तत अगर कह मेहमान यी तो बत तत कमी बासान मतलब कि अगर हमें कभी गुमान से गुजर हुआ तो खाना खा सकते हैं आपके। खूबसूरत इलाका है, सर सब्ज है और तपर खेत जन या चोट बापरी दान जमीन अत सह वाबस्तगी तो जरखेज इलाक तवे बतसी सत रोदमुत ज्यादा मिसाल कि तम चीज हकीकतन और उसके साथ साथ वहाँ पे बहुत सारी पर्सनैलिटीज है। अर्नी माल अगर बोजमुत आए नाव बिल्कुल क्या बात करते हैं, खूबसूरत शायरा रही और सह पलहालन तुहद वाबस्त रोदमुत तथ सत बड़ पाइक शहर पलहाल यम जन खालिक पलहज नाव जाना तो पलहालन ओवरऑलस मज खूबसूरत इलाका ये जन वनकस डॉक्टर्स इंजीनियरन सत माशाल्लाह साइंटिस्ट्स तो अवेलेबल तो खूबसूरत जन इलाका अत सत शायर तो मुंसलिक तथ सत उस्तादन मजमू तत मौजूद। बहुत इलाका है, इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी और उस पर अगर बात करने पे आएंगे तो सारा प्रोग्राम एक खाका में बताया नाज़रीन है
ایسے لفظی نام تو سنتے رہتے ہیں ہم، منز بوزاں ایک جائے متعلق تو ان کے بارے میں اگر تھوڑی سی جانکاری زیادہ تو لوگوں کا من کرتا ہے کہ چلو جائیں کبھی وہاں سے. کوئی خاص چیز کیا بنتی ہے وہاں اگر نا اتنی مشہور جیسے میں نے روٹی وغیرہ کا کہا ابھی کہاں چیز ہے پلہالن مشہور ہے؟ اس طرح سے تو میں نے صرف آپ کو ایگریکلچر والی وابستگی کی. پلہالن کی جو سب سے مشہور چیز ہے وہ اشفاق حافظ ہے. یہ بہت شکریہ. یہ ہمارا یہ ہے یقین ہے. ہم ڈاکٹر صاحب میں ناظرین کو اس اپنی گفتگو میں اتنا بور نہیں کرنا چاہتا تھا. میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا اپنی زندگی کے بارے میں بتائیے اور جو جوش کا میں نے ذکر کیا تھا آغاز میں اور اس جوش کے ساتھ اپنی زندگی کا جو سفر کیا ہے. آپ ایک ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ اور ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ یہ میڈیا یہ کامبو کیسے بنا یہ مجھے بڑا یہ تجسس ہے اس بارے میں جاننے کا. خواہش تھی شاید بچپن سے. میں دو باتیں میں کہوں گا. پہلے آپ کی ایک میں ابھی کسی ہمارے دوست نے ایک کامنٹ لکھا تھا آپ کے بارے میں کہ اشفاق شائع ہیں شرمیلے ہیں. تو یہ کامنٹ میں اپنے لیے لے لیتا ہوں کیونکہ میں بچپن میں بہت شائع تھا بہت زیادہ. بخصوص واریہ صحیح مطلب وہ شرمیلا بچہ تھا اور میرے والد صاحب چاہتے تھے کہ میں بولوں پبلک اسپیکنگ کیونکہ وہ ان کو کوئی خوف نہیں تھا بولنے کا. کافی بولتے تھے وہ بڑی کانفیڈنس کے ساتھ بولتے تھے. تو پھر انہوں نے میرے ٹیچرز کو کہا کہ ان کو پریئر پڑھاؤ آپ اسکول میں. تو میں وہاں کھڑا رہتا تھا لیکن بولتا کچھ بھی نہیں تھا. اچھا. تو پھر تھوڑا سا عرصہ ہوا پھر ٹیچر نے شکایت کی کہ یہ ابھی ہیں تو ہم نے ان کو رکھا ہے پریئر بوائز میں لیکن یہ پڑھتے وہاں کچھ نہیں ہے خالی وہاں پہ کھڑے رہتے ہیں. تو ابا نے کہا کہ نہیں ان کو رکھو کھڑا جب تک یہ بولنا شروع نہ کرے. تو پھر شروعات ہوئی تو پھر ایک ٹائم آیا کہ پھر آئی واز دا لیڈنگ پریئر بوائے آف دا اسکول اپ ٹو کلاس 10th. آج تو ابھی بھی یہ ہیں ہم پریئر بوائز میں جو ہماری ٹیم تھی 2-3 بچے جو ہیں وہ پریئر پڑھتے تھے. ابھی بھی بچوں میں یہ مارننگ پریئر ہے مارننگ اسمبلی اس کا تو بڑا زبردست ابھی بھی اہتمام ہوتا ہے. تو ان دنوں بھی ہوتا تھا ایسے تمن دہن پریئر ویئر پڑھان. تو وہ اس سے جو ہے ایک مجھے لگا کہ وہ جو خوف اور ڈر کا وہ ایک عنصر تھا میرے دل میں یا دماغ میں. تو ابا نے اس کو بانپ لیا تھا اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے انہوں نے میرے ٹیچرز کو صلاحیں دی اور ٹیچرز نے بھی مجھے بڑا انکریج کیا اس چیز کے لیے. کافی دن کافی مہینے جیلا مجھے اور اس کے بعد جو ہے پھر شروعات ہوئی بولنے کی. اور مجھے لگتا ہے کہ جب آپ اعتماد جب آپ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پھر وہ خود اعتمادی جو ہے وہ آپ کو پھر جب آپ بولتے ہیں پھر آپ کو پبلک اسپیکنگ میں آپ کو کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہوتا ہے. بعد میں انسان لاکھوں جیسے ابھی ہم دوردرشن کے اس شو میں لاکھوں ناظرین کے ساتھ مخاطب ہیں تو یہ خوف نہیں رہتا ہے کیونکہ یہ بعد میں ایک اپنائیت کا ایک احساس ہوتا ہے جس احساس کے تلے ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب ہم صبح آتے ہیں یہاں پروگرام کرنے کے لیے آپ سے مخاطب ہونا یا ادروائز جو سٹیج شوز ہوتے ہیں یا کوئی اور محفل ہوتی ہے وہاں پہ جب بھی کبھی بولنے کی بات آتی ہے تو پھر انسان کو اچھا لگتا ہے کہ آپ بولیں یا آپ کو بولنے کا موقع ملے. بہرحال ایک وقفے کے لیے ہم کو اس وقت رکنا پڑے گا کیونکہ پروگرام کی جو کاروائی ہے اس میں تجارتی وقفے بھی شامل ہوتے ہیں. ایک تجارتی وقفے کے لیے ہم رکتے ہیں یہاں پہ. اس کے بعد جب لوٹ کے آئیں گے تو اور باتیں کریں گے آپ کے ساتھ. آپ کے کچھ کامنٹس ہیں وہ جو خوبصورت باتیں آپ نے لکھ کے بھیجی ہیں ان کامنٹس کو بھی ہم شامل پروگرام کریں گے. آپ دیکھتے رہیے اور انجوائے کرتے رہیے فیوریٹ بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ جن کے. کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ دل سے بنا. کیا آپ شوگر کولیسٹرول اور قبض سے پریشان ہیں؟ آپ کی یہ پریشانی دور کرنے کے لیے ویدانت ہربل لے کر آیا ہے DC99 پریمیم آیورویدک جوس. اپنے اور پریوار کی صحت کی بھرپور حفاظت کے لیے خاص کر ڈائبیٹک پیشنٹس استعمال کریں ویدانت کا DC99 جوس. یہ جڑ سے روگ مٹائے اور آپ کی شوگر لیول کو ہر وقت کنٹرول میں رکھے گا. ویدانت DC99 جوس بادی کے ہر یونانی اسٹور پہ دستیاب ہے. فٹ ویئر انکوائری کال آن 7006949946. کشمیر ایک نام ایک احساس
जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। आप सभी देखने वालों का नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और वक्फे के उस पार अखबारात की सुर्खी हमेशा तैयार होती है, आज भी तैयार है। आगाज करते हैं एक उर्दू रोजनामे से जो मेरे हाथ में है। अखबार पहले सफ़े पर रकम तराज होकर लिखता है, चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत NHLML की मीटिंग 18 रुपए मंसूबों 18 रुपए मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। सेंट्रल बादी और मुतल्लिका महकमों के दरमियान बेहतर तालमेल लाजमी। अतल डल्लू। इसके साथ साथ एक और खबर, जहरीली खुराक की वजह से 2 बच्चे लुकमे अजल, दीगर 15 बीमार। बस्ती में सनसनी का माहौल, लोगों में तशवीश। जी डॉक्टर साहब। एक उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी सुर्खी है, मरकज़ और रियासत के दरमियान एक मौसर पुल का किरदार अदा करें वज़ीर आज़म। मरकज़ी एजेंसियाँ तमाम रियासतों में बेहतर तालमेल के साथ काम करें। इस अखबार की एक और सुर्खी, सड़क हादसात के मुतासरीन के लिए मुफ्त इलाज होगा। हुकूमत ने हादसात के मुतासरीन को बगैर नकदी के इलाज फराहम करने के लिए स्कीम नाफिज की। स्कीम चंडीगढ़ और आसाम में पायलट बुनियादों पर शुरू, दीगर इलाकों में जल्दी शुरू होगी। नितिन गडकरी। जी अशफाक। जी एक और उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में। अखबार लिखता है, छरनबल कुलगाम में वसीउल अरीज हिस्सा कुदरती खूबसूरती का अछूता टुकड़ा। दीवार के जंगलात का मरकज, सरसब्ज घास के मैदान, नाला जिजनार और हाकवास का संगम, महकमे सयाहत की नजरों से ओझल। जी डॉक्टर साहब। एक उर्दू रोज़नामा मेरे हाथ में, इसकी सुर्खी है, सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने गुरेज श्रीनगर के लिए जामा सीवरेज स्कीम के काम की पेश रफ्त का जायजा लिया। सोरा के 90 फीट इलाके में सीवेज का जाल बिछाने की भी हिदायत। इसी अखबार की एक ज़ैली सुर्खी है, नीट पेपर लीक मामला, सुप्रीम कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत की कमेटी से 30 सितंबर तक मुकम्मल रिपोर्ट जमा करने की हिदायत दी। जी एक और उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में। अखबार लिखता है, पुलिस महकमे में मामूली फेरोबदल, अशोक कुमार शर्मा नए SSP सिक्योरिटी तैनात। एक और खबर इसी अखबार से। अखबार लिखता है, वादी में खुदकुशी के बढ़ते हुए वाकयात ने तशवीशनाक रुख इख्तियार कर लिया। माह जुलाई में 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने दरिया में छलांग लगाकर अपनी जिंदगियों का खात्मा कर दिया। बहुत ही तशवीशनाक खबर है डॉक्टर साहब। हमारे नौजवान जो है जिंदगी का खात्मा करने का फैसला जल्द लेते हैं, जल्दबाजी इसमें करते हैं, और हालांकि ये बड़ा फैसला है, इस फैसले को लेना आसान नहीं है, मुश्किलें ज़िंदगी में आ जाती है। कल मैं DC साहब की भी एक रिपोर्ट देख रहा था, उन्होंने कहा था कि हम ब्रिजेस पर फेंसिंग करेंगे, पर वो मेरे ख्याल से वो तो करेंगे ऑब्वियसली, उससे तो रुकावट ब्रिजेस पर होगी, लेकिन खुदकुशी जो मामला है वो कोई और तरकीब वहाँ पर सोचेंगे। बुनियादी तौर पर जो मसला है इसको ज़रा खुद ही देखने की कोशिश करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने अहबाबों के साथ इन बातों को उठाइए, उनसे बातें करें, उन्हें बताइए कि आप किस मुश्किल में मुब्तला हैं, उस मुश्किल का हल तलाशने की कोशिश करें, ना कि खुदकुशी से अपनी ज़िंदगी का खात्मा करें। मुश्किल तो वहीं पर है, और उसके साथ साथ एक और मुश्किल आप अपने घर वालों के लिए बढ़ा देते हैं जब आप अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर देते हैं। कोशिश कीजिएगा कि मुश्किलों का हल तलाश करें, आसान ज़िंदगी गुजारिए, अल्लाह ताला से अपना राबिता जोड़िए और उसके बाद इन चीज़ों से गुरेज करें, ये आपसे गुजारिश रहेगी। जी एक मकामी अंग्रेजी रोजनामा और उसकी सुर्खी है, ED अंडरटेक्स फर्स्ट एवर सर्च इन लद्दाख इन क्रिप्टो फ्रॉड केस, सर्चेज इन जम्मू 2। इसी अखबार की एक ज़ेले सुर्खी है, 36th बैच ऑफ ओवर 1200 पिलग्रिम्स लीव फ्रॉम जम्मू फॉर अमरनाथ यात्रा। और अब की बार जो अमरनाथ यात्रा है, ये इन यात्रियों की जो तादाद है वो अभी तक के का जो है सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। 4,75,000 यात्री जो हैं अभी तक दर्शन कर चुके हैं, और अभी भी कुछ दिन बाकी हैं यात्रा के, और मौसम की जो मेहरबानियां हैं वो भी रहीं, शामिल हाल रहीं। और ये जो हम एक तहजीब का जो एक बड़ा एक नमूना है, एक अक्कासी होती है यहाँ पे बरादरी की, रवादारी की, मजहबी रवादारी की, तो उसकी आला मिसाल के तौर पे जो अमरनाथ यात्रा है वो शदोमत से जारी है।
जी, एक अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में, अखबार लिखता है J&K सीज ₹8,050 करोड़ इन्वेस्टमेंट सर्ज सिंस 2021। एक और खबर इसी अखबार से, जम्मू एंड कश्मीर बैंक शेयर सर्ज 13% अमिड रिकॉर्ड ट्रेडिंग वॉल्यूम। जी डॉक्टर साहब। एक उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में, इस अखबार से एक सुर्खी कि बारामूला को मनशियात से पाक करने की पुलिसी मुहिम, 19 महीनों में 86.5 करोड़ मालियत की मनशियात जब्त, 375 मुकदमात दर्ज। जी, एक और अखबार मेरे हाथ में, अखबार लिखता है प्रेसिडेंट मुर्मू गैदर्स गवर्नर्स एट राष्ट्रपति भवन, कॉन्फ्रेंस कॉल्स फॉर forging stronger center state relations। एक और खबर इसी अखबार से, setting the stage ECI's कश्मीर पोल readiness check on August 8। जी डॉक्टर साहब। एक आखिरी रोजनामा, उर्दू रोजनामा मेरे हाथ में है, इसकी सुर्खी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जम्मू कश्मीर का दौरा अनकरीब मुतवक्को, वफद सिविल और पुलिस इंतजामिया सियासी जमातों से मुलाकात होगा, हतमी नतीजे से पहले जमीनी सूरत हाल का जायजा लेगा। एक आखिरी अंग्रेजी रोजनामा मेरे हाथ में भी, अखबार लिखता है इंडिया बीट ऑस्ट्रेलिया, स्पोर्ट्स के हवाले से, इंडिया बीट ऑस्ट्रेलिया इन हॉकी फॉर फर्स्ट टाइम एट मेगा इवेंट सिंस 1972। ये ओलंपिक के हवाले से खबर है। और एक और खबर इसी अखबार से, पेरिस ओलंपिक से ही मानू भाकर क्वालिफाइज फॉर वुमेन्स 25 मीटर पिस्तौल फाइनल, ईशा मिसेस आउट। जी डॉक्टर साहब, ये और आखिरी अखबार मेरे हाथ के बाद जो हमने आपसे वादा किया था कि आपकी सुर्खियां, ये जो आपके मैसेजेस हैं, जो हमारे जो कमेंट्स हैं, वो भी हम शामिल प्रोग्राम करेंगे। कुछ दोस्तों ने हमें, फारूक अहमद जो है हमारे रेगुलर व्यूअर हैं नौबुक से, तारिक जरगर साहब हैं, परवेज गोजवारी साहब हैं, जिनकी एक शिकायत भी है, तो मैं उस पर कोशिश कर रहा हूँ अमल करने की। ज़हूर रिजवी साहब हैं, फारूक फहीम साहब हैं, शेख तारिक हैं, इसके अलावा मुश्ताक अहमद भट्ट साहब भी हैं, महराज साहब ने भी एक मैसेज किया है, और मुमताज़ भट्ट साहब हैं, बशीर अहमद साहब हैं, मुमताजुल सुल्तान मत्तू हैं, अशफाक भट्ट हैं, मुजफ्फर साहब ने एक और मैसेज भी किया है, परवीन नकाश ने मैसेज किया है, सलाम कहिए हमें, वालेकुम सलाम। इसके अलावा जो है और अली मोहम्मद लोन साहब, शाहीना सरवर और एजी सा, आज ये इन्होंने एक मैसेज लिखा है, आज आपने प्रोग्राम को मैं किसी मेहमान की शिरकत के बगैर अंजाम दे रहे हैं, आप लोग इस कोशिश के लिए आप दोनों को मुबारकबाद। दरअसल हम दो ही नहीं कर रहे हैं प्रोग्राम, ये हम सब कर रहे हैं, आप और हम कर रहे हैं प्रोग्राम। आज तो ज्यादा मेहमान है, मुझे लगता है कि अशफाक हमारे प्रोग्राम में जो एक मेहमान शख्सियत होती हैं, आज अगर हम देखें स्क्रीन के उस तरफ हजारों लाखों जो हमारे चाहने वाले हैं इस प्रोग्राम के, उनके साथ हम रूबरू हैं, और वो तो हम सब ये एक फैमिली है, और इस फैमिली में आप बिल्कुल हम आपकी वही रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वही दिल में हमारे आपके लिए वक़ार है जो हम मेहमानों के लिए जो होता है। और इसके बगैर भी अभी बहुत सारे जो हैं हमारे दोस्त वो हमसे जुड़ रहे हैं, और आपसे वादा है कि हम आपकी मैसेजेस जो हैं आपके नाम के साथ अभी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसे हमारे नाजरीन हैं जिनके नाम अब हमें जुबानी याद हो गए। एक और हमारे साथ जो नाजरीन जुड़े हुए हैं, ये मुस्कान मोहिद्दीन साहिबा हैं, और कुछ ऐसे नाम है जो हम भूलते नहीं है। प्रोग्राम से पहले ही वो लोग आ चुके होते हैं, प्रोग्राम का इंतजार कर रहे होते हैं, जिसमें आप जानते हैं कि परवेज साहब है, और माविन परवेज इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें ये भी पता है ये इनकी बेटी का नाम है, और इस तरह से फारूक साहब है, इसी तरह से इसी नाम के बहुत सारे ऐसे दोस्त जी हैं। हाँ, और जरूरी नहीं कि हर कोई मैसेज करे, ऐसा है कि 7:30 पौने 8 से ही काम काज शुरू वही मैं दरअसल इसी बात की खत्म करना, कैसे ये 8 घंटे पे हम गुड मॉर्निंग जेन के प्रोग्राम एंकर सिवान, तो उनके साथ हम रूबरू होंगे, उनकी बातें सुनेंगे, अच्छी बातों पे अमल करने की कोशिश करेंगे। असल में मुद्दा मकसद वही होना चाहिए, हमें इस्लाह जो हमारा जो शख्सियत है हमारी, उस शख्सियत से हम अपने लिए, अपनों के लिए और समाज के लिए फ़ायदेमंद बने, सूदमंद साबित हों, और हमारी कोशिश यही रहनी चाहिए हमेशा कि हम दूसरों के लिए कोई अच्छा काम करें, मुस्कुराहट से किसी का इस्तकबाल करें, किसी के साथ बात जब करें तो खुले दिल से, खुले जहन से बात करें। एक वक्फे के लिए अशफाक हमें दोबारा रुकना होगा, एक तिजारती वक्फा आया चाहता है, तिजारती वक्फे के उस पर आएंगे तो बातचीत का ये जो खूबसूरत सिलसिला है ये जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग JNK। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में,
मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। एक फिर खुशहावे नाज़रीन मोहतरम तुझ वुचान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के तो नुन चाय कप हन अस ब्रोह किन तह ब्रोह किन कोशिश नुन चाय दाम चमो मगर गुड मॉर्निंग जे&के युस प्रोग्राम यह करो मिस कहें युस अत मज अख मिनट यह हमेशा कीमती चूँकि आज हमारे साथ मेहमान तशरीफ फरमा नहीं है, इसलिए हम दो मेज़बान जो है प्रोग्राम की जो कार्रवाई वो आगे बढ़ा रहे हैं और आपके साथ अपने तजुर्बात शेयर कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि आप भी अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे पास कुछ प्रोग्राम में अभी कुछ मिनट है, इनमें कोशिश करेंगे कि जो भी तजवीज़ें हैं उनको लेने की कोशिश करेंगे। और हमारे एक दोस्त है इरफान रशीद साहब लिखते हैं कि मैं इस प्रोग्राम को कभी मिस नहीं करता हूँ क्योंकि डाइवर्स कम्युनिटीज़ से अलग अलग पर्सनैलिटीज़ आती रहती है। ये लिखते हैं कि आप इनवाइट कीजिए, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम डाइवर्स ही मेहमान यहाँ पे बुलाते हैं, किसी एक फील्ड से नहीं चुनते हैं, रैंडमली हमारे पास होते हैं मेहमान। जिस फील्ड में भी हमें मुनासिब लगता है हम उस फील्ड से उन्हें प्रोग्राम में बुलाते रहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक दोस्त से मैसेज मिलती थी अक्सर कि आप लोग प्रोग्राम जो करते हैं और हमारा नाम नहीं लेते हैं, कोशिश कीजिए कि अपने दोस्तों को भी याद वहाँ पे भी किया कीजिए। और मैं आज फिर भी अगर मैं एक दोस्त का नाम लूँ तो बाकी सारे दोस्त नाराज़ हो जाएंगे। तो सभी दोस्तों को मेरी तरफ से शुक्रिया जो हमें देखते हैं, प्यार से नवाजते हैं। कल जो है नेशनल लेवल पे हमारे मुल्क में दोस्ती का कौमी दिन भी मनाया जा रहा है। कल फ्रेंडशिप ये 4 अगस्त को मनाया जाएगा। हालांकि 30 तारीख को जो है वो इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे है, लेकिन हमारे मुल्क में जो दोस्ती का दिन है वो 4 अगस्त को मनाया जाता है। कल संडे है, इसलिए दोस्तों के लिए प्लान करें थोड़ा। और कल संडे भी है, सैर सपाटे, अभी मौसम भी अच्छा है। आप जो शहरों की कस्बों की जो गर्मी है उससे थोड़ा सा बाहर निकल कर देखें अपने आसपास जो आपकी खूबसूरत जो सयाहती मकामात हैं उनका रुख करें, जाएं, लेकिन एक गुजारिश के साथ कि वहाँ कूड़ा करकट जो है वो ना डालें। मैं रिसेंटली में गया था मामत से गांधरबल न्यारान कंगन त्रवित जस्ट मैं बसान 3-4 किलोमीटर बड़ा खूबसूरत जगह। वहाँ की जो पार्क है, पब्लिक पार्क है, बहुत छोटी है, जो कि TDC ने बनवाई है, लेकिन उस पार्क में भी एक हमारे बुजुर्ग थे जो वहाँ पे केयर टेकर थे, तो उनके हाथ में मैंने देखा कि एक पॉलीथीन का लिफाफा है और वो उसमें पूरे उस पार्क में छोटी चीज जो चिप्स के लिफाफे हैं, जो ये मन केलन हिंदी दियल वगैरह सारी चीजें वो समेट के उसमें डाल रहे थे। और बिल्कुल वो फिर मैंने उनको पूछा भी तो उन्होंने कहा कि मैं बारहा गुजारिश करता हूँ, अब जब लोग नहीं समझ रहे हैं तो अब मैंने कहना छोड़ दिया। अब मुझे पता है कि इसको साफ रखने का जो ये है मसला है वो मेरे ही ऊपर है, इसलिए बुछुस करन कम बुछुस पन्नी हसर वथान तो तोलाम पद दिन में जब मैं तकरीबन 1-2 घंटा था वहां पे, तो 1-2 घंटे में वो कम से कम 2-3 बार आए और वो जो कूड़ा है वहां पे समेट के वो डस्टबिन में डाल रहे थे। आपने बहुत अच्छी बात बोली। और आजकल इस गर्मी में अक्सर हम सेहत अफजा मकामात की ओर जाते हैं, सिर्फ वहां नहीं, अगर आसपास भी हम कहीं जाते हैं, हम पॉलीथीन का इस्तेमाल, बोटल्स का इस्तेमाल या चिप्स के पैकेट्स का इस्तेमाल, जिस चीज का भी इस्तेमाल करते हैं उसके बाद हम इस कूड़े को कहीं पर भी फेंकते हैं। ये जो निज़ाम है, देखें आप जानते हैं कि इस वक्त सब गर्मी कर रहे हैं या सर्दियों में कह रहे हैं कि फिर सर्दी ज़्यादा हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की सब बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज क्यों हुआ, बारिशें क्यों नहीं होती है, इस पर प्रैक्टिकली सब फिर चुप ही रह जाते हैं और हम सब इसमें हम भी शामिल हैं। कोशिश हमारी ये होनी चाहिए, जो निज़ाम था जब हम बचपन में पढ़ते थे कि ये जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, ये जो नेचर में सिस्टम है, इसको अगर हम बिगाड़ेंगे तो ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। तब हम सोचते थे कि क्या वना यह लिखित शायद किताब पर युथ मामला यह कत आए साइकिल, मगर आज हमारे पास प्रैक्टिकल है। जब हम पेड़ काटते हैं तो क्या हो रहा है, पेड़ ओबुर खसा मगर सह पे सैनिस इलाकस कहें सो करम बना कहें। मामल क्या वन कि सन एमाल, मगर एमाल ये तिक नु कुल टित थो साफ सफाई कहें, अस कोर सो आब गंद युस आब चोन आब हयात यथ आबस मज यो आब पे पन्निस जिस्मस पे त्रावान पन बुथ छलान त्रेश चवान मगर अत मज ोट त्रावन विच सोचान कहें। यह तम इन्फॉर्मेशन जन कोशिश करान कि पे प्रोग्राम जरिए वातनो। या आगाज में जिक्र करान कि वारिया प्रोग्राम बचपन पे ये चलान और मैं वहाँ पे थोड़ा सा चूक गया, चूंकि मैं एक चीज़ पे बात नहीं करना चाहता था
कि ये नहीं कहना चाहता था कि वो जो ब्रॉडकास्टर से जो मुझे याद है, जिनका नाम मुझे भी याद नहीं जुबान पे आ रहा है, कि वो किसी खास प्रोग्राम के साथ मुंसलिक थे। मेरा ये मकसद था कि मैं उनको सुनता था, चाहे वो शहर बिन में आते थे, प्यार में सुबह में आते थे, चाहे धड़कन में आते थे, या बाकी सारे दीगर नशरियात उनमें सुनता था। और मेरे साइड से एक खास ब्रॉडकास्टर है जिनसे भी मैंने काफ़ी सीखा है, बशारत बुखारी साहब, जिनको आप बखूबी जानते होंगे, या मेरी ज़िंदगी में एक ख़ास नाम रहा है, हमारे दूरदर्शन के साथ उनकी वाबस्तगी रही है। मेरे अंकल है डॉक्टर रफ़ीक मसूदी साहब, और उनसे भी काफ़ी सीखने को मिला है, और उनका नाम लेना ज़रूरी था। मैं माजरत खाऊं कि पहले ये चीज़ भूल गया। और डॉक्टर साहब, मैं इस बारे में कह रहा था कि कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम इन चीज़ों को खुद सुधारें, इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएं। और इसी इन्फॉर्मेशन के हवाले से एक और इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचा देते हैं कि ये जो क्लाइमेट चेंज इशू है, ये पूरे आलम में है, पूरी दुनिया में है, और कुछ ममालिक ने इस पर जब काम किया, पेड़ लगाए, तो पेड़ लगाने की वजह से उनके इलाकों में गर्मी कम देखी गई, 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर डाउन हुआ। इसी तरह से अगर वादी में भी पेड़ लगाए जाएंगे, कोशिश कीजिए 1-2 पेड़ साल में 3, जितनी भी आपसे मेहनत हो सके महीने में लगाइए, प्लांट्स लगाइए, और इससे इंशाल्लाह माहौल ठीक हो जाएगा। खैर, और प्रोग्रामों के हवाले से भी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि अक्सर प्रोग्रामों में इजाफा होता रहता है, और कुछ और प्रोग्राम जुड़ गए हैं। प्रोमो आया चाहता है प्रोग्राम के हवाले से, और उसकी टाइमिंग के हवाले से, कब नशर होता है, क्या होता है, देखिएगा। उसके बाद प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं फुल्लां दी सेज परेशान जे कर मेरे तू आवे। कितना सुनने में खूबसूरत गीत है ना। बिल्कुल, और इसीलिए तो मैं कहती हूँ ना विंध्या कि मुझे पहाड़ी सीखनी ही सीखनी है। ये पहाड़ों की धुन है, ये पहाड़ों की आवाज है जो आपसे कह रही है कि अगर आप मेरे घर आए तो मैं फूलों से सेज सजा दूं। कोई बिजली सावण दी है, कदू में उड़ीक रखा माया तेरे आमण दी। मैं फुल्लां दी सेज बने सांझे घर मेरे तू आवें। मैं फुल्लां दी सेज बने सांझे घर मेरे तू आवें। मैं कलियां ते चाले सांझे घर मेरे तू आवें। सोने नाल ना पीतल रल दे, सोने नाल ना पीतल रल दे, सुरमे नाल ना कोले, सुरमे नाल ना कोले। कावां दी की कदर मुहम्मद जिथे बुलबुल बोले। कावां दी की कदर मुहम्मद जिथे बुलबुल बोले। जींद को ना मारो, ना मारो, ना मारो मारी जान, जींदा घड़ियां दा मिज़मान, के जींद को ना मारो। ओ तू को चढ़िया 16वां साल वे, हुणे मिलता नसीबां नाल वे। तू को चढ़िया 16वां साल वे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जिन के लोक रंग प्रोग्राम का ये प्रोमो हमने आप तक पहुंचाया। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि आज शाम को 7:30 बजे हमारे यहाँ से टेलीकास्ट होगी हिंदी फीचर फिल्म ठग शक।
جس کے جو خاص کلاکار ہیں اجے دیوگن ہیں، تبو ہے، امریش پوری ہے. 7:30 بجے یہ آئے گی، ہماری نشریات میں شامل ہوگی. اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم پہنچ گئے ہیں اور ایک شعر میرے ذہن میں آیا، ایک بڑا خوبصورت شعر ہے اور یہ شعر میں اشفاق کی نظر کرتا ہوں کہ شاید آنے کا ادھر مجھ کو کبھی موقع ملے، شاید آنے کا ادھر مجھ کو کبھی موقع ملے، ہو سکے تو نام اپنے گاؤں کا لکھنا مجھے، کل تمہیں تاریخ کے اوراق میں مل جاؤں گا، تم بھی کل گزرا ہوا ایک واقعہ لکھنا مجھے. بہت خوب ڈاکٹر صاحب، بہت خوب، بہت شکریہ. اچھا مجھے یہ تجسس رہا کہ آپ نے بتایا ہی نہیں اپنے بارے میں پورا جو میں نے سوال پوچھا تھا. کیونکہ ہمارے پاس یہ آخری منٹ سے پروگرام ہے. مجھے لگ نہیں رہا ہے کہ ابھی تک میں نے کچھ اتنا کمال کیا ہے کہ اپنے بارے میں کچھ خاص بتاؤں، لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ میں ایک پیشے سے ڈاکٹر ہوں اصل میں، اور ایک جموں کشمیر کے ایک معتبر مالیاتی ادارے میں کام کر رہا ہوں. اس کے علاوہ میڈیا کا جو شوق ہے وہ بچپن سے رہا اور بہت کوششیں کی اس کے لیے. میں جو شگوفے بامن بچن پروگرام سیوانہ سے ریڈیو پیٹر اس میں بھی شرکت کی جب میں 5th 6th میں تھا تب سے، اور اس کے بعد یہاں دوردرشن میں بھی آیا پہلے جو پروگرام ہیں ان میں، اور بحیثیت ایک ہیلتھ ایکسپرٹ کے، ایک ڈاکٹر کے میں نے بچوں کے پروگرام میں بچوں کو کچھ نصیحتیں کی ہیلتھ کے حوالے سے. اور اس کے بعد جب 2011 میں آڈیشنز ہوئے گڈ مارننگ جے کے، تو اس میں جو ابھی پروگرام کر رہے ہیں تو اس میں 2 نام ہیں جو 2011 کے آڈیشن سے آئے ہیں، میں اور اظہر. تو ہم دونوں تب سے کر رہے ہیں پروگرام، تو بیچ میں کبھی کم دکھائی دیتے ہیں کبھی زیادہ، بٹ کنٹینیوسلی ایک جو رشتہ ہے اس کو استوار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک لرنر ہوں میں، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں سے ملوں، ان سے باتیں کروں اور ان کی باتوں سے سیکھ کر کے دوسرے لوگوں تک اچھی باتیں پہنچائیں. بہت خوب ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں. آپ کے ساتھ ساتھ ہمارے جو پروگرام کے باقی ممبرس ہیں جو ہمیں روز ساتھ میں ہوتے ہیں، یہاں میزبان ہوتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. ہمارے ناظرین کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی براڈ کاسٹرز ہمارے فیلڈ سے وابستہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سکسیس سے نوازیں، کامیابی سے نوازیں، ان کو سلامت رکھے. جو نام ہم نے آج یاد کیے جو ہمیں یاد نہیں ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کامیابی سے اور اچھے صحت سے نوازیں. اور ظہور رضوی صاحب ہمیں ایک کمنٹ لکھتے تھے کہ جس طرح سے آپ دونوں نے آج یہ اپنا بیک گراؤنڈ شیئر کیا، ہم چاہتے ہیں کہ باقی اینکرز بھی اپنا بیک گراؤنڈ شیئر کریں، اور ان کو جب انشاءاللہ موقع ملے گا، ہماری طرح ہی ایک عام شخصیت ہیں تو ان کو بھی موقع ملے گا، وہ ضرور آپ سے شیئر کریں گے. اور بھی کچھ خاص جو تجویزیں ہیں جو آپ نے لکھیے، چاہتے ہیں کہ پروگرام میں بدلاؤ، ان پر ہم ضرور کوشش کریں گے کہ عمل پیرا ہوں گے. اور وقت اجازت نہیں دیتا کہ اور باتیں ہم اپنے ناظرین سے کریں. جی ڈاکٹر صاحب. میں یہی کہہ رہا تھا کہ باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا کہ 9 بجنے والے ہیں. اور آج کی نشست سے اب ہم رخصت لے رہے ہیں. کل صبح 2 میزبان اور جو ہمارے ساتھی ہیں وہ یہ پروگرام پیش کریں گے آپ کی خدمت میں. دیکھنا نہیں بھولیے گا گڈ مارننگ جے کے. آج کی نشست سے دیجیے مجھے اور اشفاق حافظی کو اجازت. اللہ حافظ. اللہ